Now kids, I am back with my revision session number 4. In today's session number 4, I am going to explain you another chapters. मैंने आपको chapter number 5, 6 कर दिए और chapter number 1, 2 करवा दिए. Now I am going to explain you chapter number 3 to till chapter number 7. तो ये सारे के सारे questions उसमें भी same कवर होंगे, right? So now chapter number 3, natural disasters, right? Define a volcano. Name the 3 types of volcanoes. What is the meaning of volcano? And here we need to describe 3 types of volcanoes, right? Volcanoes are cracks in the earth's crust through which molten rock or magma comes out. There are 3 types of volcano: are active volcano, dormant volcano, and extinct volcano, right? वोल्केनो एक ऐसी चीज है जो लैंड जो होता है उसको उसमें से वो निकल के बाहर फटता है, गर्म लावा बाहर निकलता है, राइट? तो there are 3 types of volcanoes: active, dormant, and extinct, right? Then after next, what is the seismograph? Seismograph क्या है? The strength of an earthquake is measured using an instrument called the seismograph. earthquake की लेंथ हमें मेजर करनी है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेस्मोग्राफ. नेक्स्ट, व्हाट इज एन एपिसेंटर? एपिसेंटर क्या है? The point on the surface of the earth which is directly above the focus, the point where the earthquake begins, is called the epicenter. एक पॉइंट होता है जहां से earthquake स्टार्ट हुआ होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर, राइट? नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, What are the impacts of earthquake? Earthquake के कौन-कौन से impacts होते हैं? Number 1, जैसे कि buildings and vehicles get damaged. Buildings और vehicles damage हो सकते हैं. Trees जो होते हैं वो uproot हो जाते हैं. Then after, people and animals may get trapped or crushed under the falling buildings and objects. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स पीपल्स होते हैं, वो सारे के सारे बिल्डिंग्स के नीचे दब जाते हैं, राइट? तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. ये सारी की सारी चीजें अर्थक्वेक से होती है, राइट? देन आफ्टर नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू टू रिमेन सेफ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक? अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कोई भी रूफ वाली चीज हो उसके नीचे जाके बैठ जाना चाहिए, राइट? टू रिमेन सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वी शुड फॉलो द गिवन गाइडलाइंस. कि गाइडलाइंस में क्या आ सकता है? इफ यू आर इनडोर्स, अगर हम घर के अंदर है तो हमें कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट के आजू बाजू में बिल्कुल भी नहीं रहना है. टेबल है, पलंग है, उसके नीचे जाके बैठ जाना है. गेट अंडर स्ट्रॉन्ग बेड और डेस्क, राइट? देन आफ्टर, इफ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हो तो प्लेन ग्राउंड है, गार्डन है, वहां पे जाना है, राइट? किसी बड़ी बिल्डिंग, बड़े घर के आजू बाजू में नहीं रहना है, बिकॉज उसके गिरने की शक्यता होती है, राइट? Then after, next, describe volcanoes. Here we need to describe all 3 types of volcanoes, right? Active volcano. A volcano that is erupting or has erupted in the recent past is called active volcano. एक ऐसा volcano, एक तो वो erupt हो रहा है या तो फिर थोड़े टाइम पहले ही erupt हो चुका होता है, right? तो उस टाइप के volcanoes को हम क्या बोलेंगे? Active volcano, right? Then after, dormant volcano. A volcano that has not erupted in many years but is expected to erupt in the future is called the dormant volcano. Dormant volcano एक ऐसा volcano है जो erupt नहीं हुआ होता है but फ्यूचर में erupt होने के चांसेस है, राइट? तो उस टाइप के volcanoes को हम क्या बोलेंगे? dormant volcano, right? Then after, next, extinct volcano. एक ऐसा volcano कि बहुत सालों तक वो erupt नहीं हुआ होता है, राइट? और आगे के टाइम पे वो इरप्ट होने के चांसेस भी नहीं है, तो उस टाइप के वोल्केनोस को हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट वोल्केनोस. चलो नेक्स्ट, हाउ डू अर्थक्वेक हैपन? अर्थक्वेक क्यों आता है? वोल्केनिक इरप्शन कैन समटाइम्स कॉज अर्थक्वेक. वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कभी-कभी अर्थक्वेक आने की शक्यता आती है, राइट? An earthquake is a sudden movement of the earth's surface and earthquakes can occur under the sea. किस हमारे लैंड में तो earthquake आता है, कभी-कभी सी के अंदर भी earthquake आता है, right? The ocean floor is shaken. This triggers a series of huge waves causing a tsunami. Even tsunami, earthquake की वजह से tsunami आने के भी chances है, right? चलो next. What do you understand about drought?
ड्राउट एक ऐसी चीज जो होती है जो लंबे टाइम तक एक पीरियड, मतलब एक सूखा पीरियड होता है, मतलब जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, बट नेचुरल रेनफॉल नहीं होता है तो प्लांट्स भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स अच्छी तरह से नहीं ग्रो होंगे तो फूड नहीं मिलेगा तो एक डिसीजेस एक बहुत बड़े एरियाज में आ जाएगी, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉट, राइट। Droughts bring in long periods of hot and dry weather, which dries up all the water resources such as wells, rivers and lakes. मतलब पानी नहीं है तो नहीं है, मतलब बहुत टाइम तक पानी नहीं आ रहा है तो सारी की सारी चीजें जो पानी वाली होती है वो भी सूख जाती है, राइट। Human being and animals face acute shortage of water. मतलब पानी के लिए ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वहाँ पे बहुत उसकी शॉर्टेज हो जाती है, राइट। So here we completed our chapter number 3. Now let's begin chapter number 4. Force and simple machines. Force और simple machines का है, right? First, what happens when force is applied on a moving object? अगर moving object है, उसमें force apply होता है तो क्या होता है? When the force applied on a moving object is in the same direction as the moving object, तो object moves faster. अगर उस कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट है वो मूव होना फास्ट हो जाएगा, राइट। When the force is applied on a moving object in the opposite direction, the object either slows down or stops. अगर opposite direction में फोर्स अप्लाई किया जाता है या तो फिर वो जो जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया है उसका फोर्स कम हो जाता है या तो फिर वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, राइट। तो फोर्स से ये सारी की सारी चीजें होती है। Now next, what is frictional force? Frictional force क्या है? Give one advantage and disadvantage of frictional force, right? The force that tries to stop the movement of object across the surface is called the frictional force. कोई भी सरफेस में अगर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है तो उस टाइप के फ्रिक्शनल इस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ एडवांटेज, इट रिड्यूसेस टेंडेंसी टू द साइड स्लिप, साइड स्लिप से हम बच सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, इट वेयर्स आउट सरफेसेस दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, कि एक कोई भी चीज होती है जिसको हम कंटिन्यूअसली पहनते हैं, राइट, तो वो एक चीज होती है वो कंटिन्यूअसली उससे मूवमेंट आती है, राइट। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज अ लीवर? लीवर क्या है? नेम द पार्ट्स ऑफ द लीवर, देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ द लीवर आर देयर, राइट। A lever is a rigid rod that can turn or move about a first fixed point or support. It consists of 3 parts: fulcrum, load and efforts. एक लीवर एक ऐसी चीज है जो कोई भी हमारा वर्क जो होता है वो इजी कर देता है, राइट। लीवर में कौन कौन सा आते हैं? सीजर्स आते हैं, नाइफ आती है, तो कोई भी हमारा ऐसा वर्क होता है जिसमें ये 3 चीजें होनी चाहिए, फल्क्रम, लोड और एफर्ट्स। ये तीनों की तीनों चीजें जिसमें कम कर सकती है उस चीज को हम क्या बोलेंगे, लीवर। डन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन क्या है? इंक्लाइंड प्लेन एक स्लोपी पार्ट है, राइट, जिसके थ्रू हमारा वर्क है वो हम इजी कर सकते हैं। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप दैट हेल्प्स टू मूव अ हैवी लोड विद लेस एफर्ट। अ रैंप इन अ हॉस्पिटल इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। फिर नॉर्मली हम लोग हॉस्पिटल में जाते तब साइड में एक इंक्लाइंड प्लेन होता है जिसके थ्रू व्हीलचेयर में जो पेशेंट्स आते हैं जो चल नहीं पाते, राइट, या तो फिर ऐसे पेशेंट्स जो बिल्कुल नहीं चल पाते, वो व्हील पे ही होते, तो उस टाइप के पेशेंट्स को इजीली हम इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। सोचो कि स्टेप्स होते हैं तो उसके थ्रू तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। चलो नेक्स्ट, हाउ डज द स्क्रू फंक्शन एज अ सिंपल मशीन? स्क्रू का किस तरह से फंक्शन होता है? वो भी सिंपल मशीन है। A screw is a type of a modified inclined plane. It is a simple machine used to hold things tight by together screws as used to objects such as light bulbs. light bulbs. Right? स्क्रू एक ऐसी चीज है वो inclined plane में से इसको शेप देके उसको हम हैंग मतलब वो हम वॉल पे लगा के कोई भी चीज को हम इजीली उस पे हैंग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट में पुश और पुल करने से क्या होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स।
The different types of force are muscular force, gravitational force, electrostatic force, elastic force and buoyant force. Muscular force मतलब कोई भी फोर्स हम मसल से करते हैं उस फोर्स को क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो अर्थ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसके थ्रू सारी की सारी चीजें उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती है, उस वजह से सारी की सारी चीजें अर्थ में नीचे रहती है. देन आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब एक चीज से दूसरी चीज को अगर रब करने से उसमें एक फोर्स जनरेट होता है. जैसे कि कभी-कभी बलून्स को हेड पे रब करके उसमें एक फोर्स होता है जिसके थ्रू हम बलून को वहां पे स्टिक कर सकते हैं, राइट. देन आफ्टर एक ऐसा फोर्स इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स मतलब कि इलास्टिक से जनरेट हुआ फोर्स, राइट. देन आफ्टर ब्यूयंट फोर्स. ब्यूयंट फोर्स मतलब कि पानी में कोई भी चीज अगर डालते हैं तो वो कम वेट की होती है, तो वो कौन सा फोर्स होता है? ब्यूयंट फोर्स. और पानी में तैरता है उस फोर्स को क्या बोलेंगे? ब्यूयंट फोर्स. चलो नेक्स्ट. डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स विद एग्जांपल्स. हमें यहाँ पे 3 टाइप्स के लीवर्स एक्सप्लेन करने हैं, वो भी विद एग्जांपल्स. फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर. A lever in which the fulcrum lies between the load and the effort is called first class lever. Example: pliers, scissors, seesaw and bottle opener. Next, second class lever. A lever in which the load lies between the fulcrum and the effort is called the second class of lever. Example: nutcracker and wheelbarrows. Third class of lever. A lever in which the effort lies between the load and the fulcrum is called third class of lever. Examples: tweezers, tongs and fishing rod. Done. Next, what are the simple machines? Describe any 3 simple machine. Simple machine क्या है? A simple machine is a tool that makes our work easier. Simple machine एक ऐसा टूल है जो हमारे वर्क को इजी कर देता है, एफर्ट्स कम कर देता है, टाइम कम कर देता है, राइट. जैसे कि लीवर, व्हील एंड एक्सले एंड बहुत सारे, राइट. इंक्लाइन प्लेन इज आल्सो काइंड ऑफ a simple machine, right. Wheel and axle. Wheel and axle consist of large wheel connected to a small rod called the axle. The wheel moves when the axle turns. Then after pulley. A pulley consists of a wheel with a grooved ring and a rope, a chain or a belt running over the groove. A pulley is used to lift heavy objects. Then after inclined plane. An inclined plane is a slope that helps you move a heavy load with less effort. A ramp in a hospital is an example of inclined plane. Done. Now let's begin chapter number 5, sources of energy, right. First, name the 2 types of sources of energy. Here we need to write down 2 types of sources of energy. कौन सी आएगी? One is renewable and another one is non-renewable, right. चलो next, what are the different renewable sources of energy? कौन सी different renewable sources of energy होती है? जैसे कि wind energy, hydro energy and geothermal energy, right. Now next, what are the disadvantages of non-renewable sources of energy? उसके कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं? एक तो वो लिमिटेड सप्लाईज होते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज, उसको स्पिल होने से भी हम डब करते टाइम पे स्पिल होने के भी चांसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे भी लीक होने के चांसेस रहते हैं, राइट. तो जिसके थ्रू पॉल्यूशन और बर्निंग की नेसेसिटी होती है. Done. Now next, name 5 different forms of energy. Here we need to write down 5 forms of energy: heat energy, light energy, mechanical energy, sound energy and electrical energy. Done. Chalo next, what is the law of conservation of energy? Conservation of energy का law कौन सा है? According to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. या तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी एनर्जी को हम टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. It can only be transformed from one form to another. और उस फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. Done. चलो नेक्स्ट, describe the renewable sources of energy. Renewable sources of energy में क्या आएगा? Solar energy, wind energy, hydro energy and geothermal energy, right. Solar energy. Sun's energy can be used to generate electricity. sun की एनर्जी से हम सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, राइट. देन आफ्टर wind energy,
जो विंड की हेल्प लेके हम मूविंग एयर जो होती है उसके थ्रू, विंड मिल में हम मूविंग एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। देन आफ्टर हाइड्रो एनर्जी, मतलब पानी का जो फ्लो होता है उसमें से हम इलेक्ट्रिक को जनरेट कर सकते हैं। देन आफ्टर जियोथर्मल एनर्जी, इट्स अ काइंड ऑफ अ हीट एंड एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। वो अर्थ के कोर में से हीट एनर्जी जनरेट होती है, राइट? डन। नाउ नेक्स्ट, describe the different forms of energy. Here we need to describe different forms of energy. कौन कौन से हैं? हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, then after साउंड एनर्जी है and इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, right? So these are the types of energies. Now next, kids, first of all I need to explain you this one, heat energy. The sun gives us heat energy that can be used to dry clothes. सन से जो हमें हीट मिलती है उससे हम मतलब फूड को भी कुक कर सकते हैं, सोलर कुकर में अपने क्लोथ्स को ड्राई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज है जो सन की हीट से बनती है, राइट? देन आफ्टर लाइट एनर्जी, द सन गिव्स आउट लाइट एनर्जी, दिस हेल्प्स टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो लाइट आती है उसके थ्रू हम आजू बाजू की सारी चीजों को देख सकते हैं। तो लाइट एनर्जी नहीं होती तो हम कोई भी चीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, राइट? Mechanical energy, the energy of an object due to its position or movement is called mechanical energy. Mechanical एक एनर्जी ऐसी है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है और जिसके थ्रू, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू मूवमेंट पॉसिबल होती है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। देन आफ्टर साउंड एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स causes an object to vibrate. अगर कोई भी चीज में फोर्स अप्लाई होता है तब वाइब्रेशन आता है, तो कौन सी चीज बाहर आती है? कौन सी चीज बाहर आती है? साउंड एनर्जी। देखो इस तरह से अगर हम कुछ भी करते हैं तो साउंड एनर्जी आती है ना? चलो नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम कोई भी इलेक्ट्रिक चीज को जनरेट करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू रन इक्विपमेंट सच एज फैंस, टेलीविजन एंड मेनी अदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स। इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को चला दे। अभी लाइट है, आप मुझे देख रहे हो, तो लाइट बंद हो जाएगी तो ब्लैक हो जाएगा, तो आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। फैन है, बंद हो जाएगा तो गर्मी हो जाएगी, तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलना भी बंद हो जाएगी, राइट? नाउ लास्ट वन, राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। चेंजिंग फॉर्म्स कैसे होते हैं एनर्जी के? According to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another. Solar panels use solar cells to transform the solar energy into electrical energy. मतलब सोलर पैनल्स जो होते हैं वो सोलर सेल के थ्रू सारी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। Done. So here we completed chapter number 5. Now let's begin chapter number 6, our environment. What are the sources of air pollution? कौन से sources होते हैं? तो smoke होता है, harmful gases होते हैं vehicles के, factories के harmful gases होते हैं, कोई भी चीज garbage होता है उसको burn करना है। तो these are the sources of air pollution, right? Next. Suggest 2 ways to prevent air pollution. ऐसे 2 ways लिखने जिसके थ्रू हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, राइट? फैक्ट्रीज शुड फिल्टर द क्लियर गैसेस वेट बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर। फैक्ट्रीज में से जो गैस निकलते हैं, राइट, उसको हमें एक बार फिल्टर करके बाहर रिलीज करने चाहिए, राइट? देन आफ्टर व्हीकल्स शुड यूज फ्यूल दैट प्रोड्यूसेस लेस टॉक्सिक गैसेस। सारे के सारे व्हीकल्स को इस तरह के फ्यूल यूज करना है जिससे खतरनाक गैसेस जो बाहर आते हैं वो कम से कम है, उस तरह का अच्छा वाला फ्यूल यूज करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, मेंशन हमें 2 कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कौन सी चीजों से होते हैं? The 2 causes of water pollution are untreated domestic water thrown into nearby rivers and solid waste dumped into rivers. अनट्रीटेड मतलब कोई भी गंदा कचरा है वो पानी में फेंक देना, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, तो उसके थ्रू वाटर पॉल्यूट होता है। ये सारी चीजें हमें बिल्कुल भी करनी चाहिए नहीं। नेक्स्ट, मेंशन 2 सोर्सेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन कौन सी चीजों से होता है? तो एक तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। कोई भी चीज को ग्रो करने के लिए हम फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा अगर यूज करते हैं तो उससे भी लैंड पॉल्यूशन होता है, राइट?
अगर लैंड को हम ओवर ग्रेस करते हैं उससे भी लैंड पॉल्यूशन होता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन की कौन कौन से इफेक्ट्स आती है? एक तो हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, ईयर एक होता है, राइट। डिफनेस आ सकती है अगर कंटिन्यूअस अगर हम नॉइज में रहते, बेरास આવી જાય આપણને લોકોને, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें नॉइज पॉल्यूशन से आ सकती है। नेक्स्ट, describe any two forms of pollution and how we can prevent them। हमें यहाँ पे टू लिखने हैं फॉर्म्स एयर पॉल्यूशन के, और हम उससे कैसे बच सकते हैं वो भी, प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी लिखना है, राइट। The addition of harmful and undesirable substances to air is called air pollution। एयर में अगर अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो एयर में मिक्सअप हो जाते हैं तो उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। एयर पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी आ सकता है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है, राइट। एयर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। हम उसको किस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? नंबर 1, फैक्ट्रीज शुड फिल्टर द स्मोक बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू द वाटर, इनटू द एयर। फैक्ट्रीज जब अपने गैस को रिलीज करे तब तक उसको एक बार अपने गंदे वाले गैस को एक बार फिल्टर कर देना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट, व्हीकल्स शुड यूज क्लीन फ्यूल्स। व्हीकल्स को जितना हो सके उतना क्लीन फ्यूल यूज करना चाहिए, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट, कटिंग ऑफ लार्ज एंड मैच्योर ट्रीज मस्ट बी अवॉइडेड। बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, मैच्योर ट्रीज होते हैं, उसको हमें कट करने से बचाना है, राइट। देन नेक्स्ट, water pollution. Addition of harmful and unwanted substances to water is called water pollution. अगर पानी में हम गंदा कचरा डाल रहे हैं तो उसको भी हमें डालना कम कर देना चाहिए, मतलब ना के बराबर डालना चाहिए, तो उससे हम वाटर के पोल्यूशन को बचा सकते हैं। It can be prevented in the following ways. Wastes from homes and factories should not be thrown into water. फैक्ट्रीज का कचरा हो या फिर घर का कचरा हो उसको पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। Oil spills should be avoided. पानी में जो ऑयल स्पिल होता है शिप के थ्रू वो भी अवॉइड कर लेना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें ध्यान से वो करेंगे तो ऑयल स्पिल भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? डिस्कस इट्स सोर्सेज एंड वेज ऑफ प्रिवेंशन। वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन क्या है और उसके सोर्सेज क्या है और उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, राइट। When sound becomes so loud that disturbs our comfort levels, it becomes noise. Excessive and continuous noise is called noise pollution. Continuous sound आता है जो हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और कंटिन्यूअस आता है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइज पॉल्यूशन। एक ऐसी अच्छी आवाज जो कम आती है, हम शांति से धीरे बोलेंगे या तो फिर स्क्रीमिंग करके बोलेंगे तो इट्स आल्सो काइंड ऑफ अ पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, राइट। Some sources of noise pollution are noise from the machines, machines में से noise आने वाले, factories में से noise आता है, vehicles में से noise आता है, right, loud speakers में से noise आता है, television में का volume fast रखेंगे तो उससे भी noise आ सकता है। Then after noise from electrical appliances, electrical appliances में जैसे कि grinder, मम्मा जब मिक्सर ग्राइंडर का यूज करते जब बहुत उसकी मोटर उसको अगर हम अच्छी तरह से क्लीन नहीं रखते हैं तो उसमें से भी आवाज जनरेट होती है, राइट। देन अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर्स। हॉर्न्स कंटिन्यूअसली हम व्हीकल्स में ड्राइव कर रहे हैं, अगर सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई है फिर भी पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है तो इट इज अ काइंड ऑफ अननेसेसरी नॉइज, राइट। तो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए नहीं। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स मतलब फटाकड़ा, वो हम बर्स्ट कर दे उसका भी बहुत बड़ा नॉइज होता है, नॉइज भी होता है, उसके थ्रू एयर पॉल्यूशन भी होता है, राइट। नॉइज पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग वेज। हम नॉइज पॉल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं? क्योंकि लाउड स्पीकर को अवॉइड करना है, अगर फिर भी करना है तो लो वॉल्यूम में करना है। अननेसेसरी हॉर्निंग मस्ट बी अवॉइडेड। अगर कोई आगे है उससे हमें निकलना है तो एक बार हॉर्न करो, कंटिन्यूअस हॉर्न करने का कोई भी मीनिंग नहीं है, वो भी हमें कम कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मस्ट बी वेल मेंटेन टू रिड्यूस देयर नॉइज। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको वेल मेंटेन करना है ताकि बहुत बड़ी जोर जोर से आवाज ना आए। Done? So here we completed our chapter number 6. Now let's begin chapter number 7. Saving our resources कि हम हमारे resources को किस तरह से बचाएंगे, right? Write a short note on why we should conserve resources. हमें हमारे resource को क्यों बचाना चाहिए?
Resources are being used at a rate faster than they can be naturally renewed, resulting in the depletion of resources. Thus, we should conserve resources. अगर resources का हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा use करेंगे तो इसको तो thousands of years लगेंगे बनने के लिए, मतलब जितना बन रहा है उससे हम ट्रिपल टाइम्स उसका ज़्यादा यूज करें तो नेक्स्ट जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि इस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो हमें कम से कम रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट? कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं? रबर मिलता है, पेपर मिलता है, राइट, रेसिन्स मिलती है, मेडिसिन मिलते हैं, गम्स मिलते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। Write 5 uses of water as a resources. We use water for drinking, washing, cooking, cleaning and agriculture. पानी के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं, कोई भी चीज ले तो पानी की नीड होती ही है हम लोगों को, राइट? Now next, what are the uses of fossil fuel? Fossil fuels के कौन कौन से यूज होते हैं? The energy used for cooking, lighting, phones and vehicles is derived from fossil fuels, right? कि कौन कौन से fossil fuels होते हैं, यूजेस होते हैं? तो कि कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लाइटनिंग फोन्स के लिए यूज कर सकते हैं और वैसे व्हीकल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जिसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, Why should you prefer reusable things over disposable things? हम reusable things का क्यों प्रीफर करना है जब disposable things का क्यों नहीं करना है? क्योंकि disposable things जो होती है वो environment को खराब करती है और reusable things होती है उसको वापस से यूज करके मतलब वो लैंड पॉल्यूशन बिल्कुल भी क्रिएट करेगा नहीं। चलो नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? वाटर को हम किस तरह से कंजर्व करेंगे? Given below are ways to conserve water. Do not waste water. हमें water को waste बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। Turn off taps while brushing your teeth. अगर पानी बह रहा है मतलब हम ब्रश कर रहे, हम यूटेंसिल्स वॉश कर रहे, क्लोथ को वॉश कर रहे, तब बिल्कुल भी हमें टैप को ओपन रखना चाहिए नहीं। Ensure leaking water pipes are fixed. अगर घर में कोई भी लीक्ड पाइप है उसको फिक्स करवाना है, रेन वाटर है उसको स्टोर करना है, मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको वाटर बॉडीज में बिल्कुल भी नहीं थ्रो करना है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स फ्रॉम दैट वी कैन कंजर्व वाटर। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेज बाय व्हिच सॉइल कैन बी कंजर्व? कौन कौन से वेज है जिसके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? एक तो सॉइल में हम कोई भी चीज को डिस्पोज अच्छी तरह से करना है, राइट? कोई भी डू नॉट थ्रो वेस्ट और हार्मफुल केमिकल ऑन अ ग्राउंड। कोई भी हार्मफुल केमिकल वाली चीज होती है बिल्कुल हमें ग्राउंड में थ्रो नहीं करना है। वी शुड प्लांट मोर नंबर ऑफ ट्रीज। स्टेप फार्मिंग को हमें अडॉप्ट करना है बिकॉज उससे सॉइल को हम इजीली कंजर्व कर सकते हैं। देन आफ्टर इन प्लेन्स, फास्ट विंड ब्लो अवे द सॉइल। टॉल ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन अ रो टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द विंड। मतलब ऐसा प्लेन एरियाज होते हैं जहाँ पे विंड बहुत फास्ट होती है तो बड़े बड़े ट्रीज प्लांट करने हैं जिसके थ्रू सॉइल इरोजन कम हो, राइट? नेक्स्ट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व एनर्जी? ये चीज क्यों इम्पोर्टेंट है हम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए? इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व एनर्जी। वी गेट एनर्जी फॉर कुकिंग, लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग होम्स, कंप्यूटर्स, फोन्स एंड व्हीकल। मतलब एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना हम एनर्जी के बिना कोई भी चीज को हम कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हमें एनर्जी को बचाना है, राइट? नाउ लास्ट वन, एक्सप्लेन द 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, राइट? तो कोई भी चीज होती है उसका, प्लास्टिक की चीज होती है उसका यूज हमें रिड्यूस करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका हमें रीयूज भी करना है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें रिसाइकल भी करना है। ये पैटर्न हम बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे तो क्या होगा? कम से कम पॉल्यूशन होगा और हम हमारे अर्थ में जो रिसोर्सेज है वो भी बच जाएंगे, राइट? सो हियर वी कंप्लीटेड रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7। नाउ किड्स, मैंने आपको वर्कशीट भेजी है। इट इज ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पस। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर्पस के लिए है। सो डू इट वेल एंड लास्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, वो भी मैंने वर्कशीट में दिया है।
फॉर दैट यू नीड टू रिफर होल बुक, वहां पे कोई भी लेबलिंग, कोई भी डायग्राम, कुछ भी आ सकता है. ओके, सो डू इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. बाय.